Purely. So tell us, what is your project about? Yes, project and known as good food eating habits. That is the topic of the project. So what are we here? What are we planning to do? Do you have anything in your mind? I have one thing that we can do. Okay, tell me. We can make some pictures in the outline of good food eating habits so it could look good. Okay, and We can put some things. okay, before putting some things, do you know what are good food eating habits or healthy eating habits? बच्चों को हॉलिडे होमवर्क में जो प्रोजेक्ट मिलता है वो बच्चों को तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं देता, लेकिन मम्मियों के लिए एक टेंशन का रीज़न ज़रूर बन जाता है। छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते नहीं हैं और मम्मियों को ज़्यादातर प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। मैंने अपने आसपास ऐसे बहुत सारी मदर्स को ट्रबल फेस करते हुए देखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी बेटी को प्रॉपरली इन्वॉल्व करूं, ना सिर्फ प्रोजेक्ट बनाने में बल्कि आइडियाज सोचने में कि हम प्रोजेक्ट क्या बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक अपनाई। जो हॉलिडे होमवर्क का प्रोजेक्ट था वो मैंने समर हॉलिडेज में नहीं बनाया। उस टाइम मैंने उसे बता दिया था कि दिस इज द प्रोजेक्ट और हम बाद में बनाएंगे, और वो मैंने क्यों नहीं बनाया इसका रीजन मैंने एक दूसरे वीडियो में शेयर करा है, 5 प्रिपरेशंस बिफोर स्कूल रीओपन्स। आप उस वीडियो को देखिए तो आपको समझ आएगा कि मैंने प्रोजेक्ट तब क्यों नहीं बनाया। प्रोजेक्ट का टॉपिक है गुड फूड ईटिंग हैबिट्स। तो मैंने अपनी बेटी को प्रोजेक्ट का टॉपिक बताया और उसके बारे में छोटी छोटी बातें बताई, जिससे हुआ ये कि उसका इंटरेस्ट डेवलप हो गया। तो जब भी हम कुछ खाना खाने बैठते वो पूछती कि इसमें प्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट अच्छा क्यों नहीं है, कुछ फैट्स अच्छे क्यों हैं। तो न सिर्फ प्रोजेक्ट में मुझे फायदा हुआ बल्कि इससे मेरी बच्ची का खाना खाने में भी इंटरेस्ट जागने लगा। कई सारे फूड आइटम्स जो पहले वो बहुत इंटरेस्ट से नहीं खाती थी, अब क्योंकि उसे पता है कि ये खाने से उसको फायदा मिलेगा, बॉडी में एनर्जी मिलेगी, तो वो फुल इंटरेस्ट से खाती है। We have all this craft stuff. We have the cardboard. And we have another cardboard actually. We have my email book, my pencil eraser, scale and colors. And the seal. Okay, that's good. So what are we doing right now? We are making our EVS project. Your EVS project. So your project says healthy eating habits. 25 centimeter by 40 centimeter should be the dimension of the project. So how many centimeters is this? We'll have to measure it from the scale. Okay, Oh, careful, careful. the height is I think this is the chapter. Raw food, source of food, more about food. This is healthy eating habits. Why don't you read? I'll be back in a only minute. eating. Yeah. You read this paragraph, this first one, I'll be back. Only eating. We should eat. We can put some things. Okay, before putting some things, do you know what are good food eating habits or healthy eating habits? So while eating food, keeping your mouth open while you chew like this. Okay. That's a good one. Yeah. The second thing is sit straight and do prayer before you eat. That's a very good one, right? And Second is eat without talking. yeah, that's a good one. And First wash your hand before eating. what about after eating? After eating, you also wash your hand. And And by eating, you need to concentrate in your food. yeah, that is also a good one. After eating your food, you should also wash your hands. Plus, you should keep your plates back in the kitchen, right? Do you do that? Little. Sometimes? Okay, that is good. It's good that you're learning. Okay. So, what are the good food that we should eat? Give me some name of healthy food items. Dal, Bhapfu. bhapfu, corn, Bhapfu means rice, right? rice, Okay. corn, chili. Chili. I know you like chili. Okay, what else? Not actually chili. And homemade momos. Homemade momos.
And also paneer. Yeah, paneer is also good. And dahi. Dahi is also But not good. too much. Yeah, but not too much. Okay. And what about other things? Don't you eat vegetables? I like to eat vegetables. What are the good vegetables that you like to eat? I like to eat tomato, potato, and lemon. What we eat yesterday night, do you remember? Yesterday night, Yes. Karela. How do you like it? It was amazing. तो बेटा जी सबके लिए अलग अलग तो जगह होनी पाएगी, है ना? तो फिर ऐसे ही करते हैं, एक ही प्लेट में 3 फूड आइटम्स डालते हैं एंड देन वी पेस्ट दैट. Yeah, क्योंकि that's इतने good. सारे प्लेट अगर हम रखने लग गए देन आई डोंट थिंक सो वी बी एबल टू राइट द बेनिफिट ऑफ देम, और एल्स वी कैन डू वन मोर थिंग. उर्वी, अगर हम सबके 2-2 फूड आइटम रखें तो Yes, good. is good. Okay, so we have this cups also. तो फिर हम ऐसा करते हैं, एक कप और एक प्लेट में सबके फूड आइटम्स रखते हैं. उर्वी, लिसन टू दिस. ठीक है. और जो गुड फूड ईटिंग हैबिट है वो हम बैनर लगा देते हैं. जैसे आप पहले हैबिट्स बोल रहे थे ना, बैनर लगाते हैं. हैबिट्स का तो बैनर लगाते हैं, साथ साथ हर एक फूड आइटम का जो बेनिफिट है उसका भी बैनर लगा देते हैं. स्टॉप ईटिंग. और बताओ मुझे कैसा आइडिया है, Good. क्या समझे आप? Everything. चिंटू, प्रोजेक्ट बनाना शुरू करने से पहले ही ना सिर्फ टॉपिक बल्कि प्रोजेक्ट कैसा बनाना है, उसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए होगा, इस बारे में मैं उससे रेगुलर डिस्कस करती रहती थी. थोड़े आइडियाज़ वो अपने भी देती थी, थोड़े मैं अपने कुछ आइडियाज़ में चेंजेस करती थी. और जब हम प्रोजेक्ट बनाने बैठे तो उसका मज़ा कुछ और ही था, क्योंकि प्रोजेक्ट में वो इक्वली पार्टिसिपेट कर रही थी. ऐसा नहीं था कि ये मेरा काम है और मैं ही बैठ के कर रही हूँ, जैसे बहुत सारी मदर्स को लगता है कि स्कूल का हॉलीडे होमवर्क बच्चों से ज़्यादा मदर्स को ट्रबल कर रहा है. तो जब हम बनाने बैठे उसने डिस्कस किया, प्रोटीन किससे मिलता है उसको पता था, और जब हम सब कुछ कर रहे थे, कुछ चिपकाना हो काटना हो, उसे एक एक बात पता थी कि ये हम क्यों कर रहे हैं. हमने सबसे पहले बेस रेडी करा एक कार्डबोर्ड से और उसमें चार्ट पेपर लगा दिया उसे कवर करने के लिए, और अलग अलग प्लेट्स में फूड आइटम्स रखे सो दैट हमें पता चल पाए कि कार्डबोर्ड में कितनी जगह है और कितने फूड आइटम उसमें आ पाएंगे. आराम से धीरे धीरे लिखना. एंड फ्रूट्स, AND एंड. प्रोजेक्ट में ये जो प्लेट्स हैं वो मेरी बेटी के टॉयज सेट में थी, और ये आइडिया उसी का था कि हम ये प्लेट्स यूज कर सकते हैं. जब ये प्लेट हम रखने लगे तो नंबर ऑफ प्लेट्स बहुत ज़्यादा हो गया, तो हमने डिसाइड किया कि हम फूड आइटम्स को कट शॉर्ट करेंगे. और पहले हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन चारों के रख रहे थे, बाद में हमने विटामिन को हटा दिया. यहाँ पर हम एक बैनर बना रहे हैं जिसमें जो भी गुड हैबिट्स होती हैं वाइल ईटिंग फूड वो हम नोट डाउन कर रहे हैं फ्रॉम द बुक जिस चैप्टर में ये मेंशन है. प्रोटीन के लिए हमने ये दोनों लगाया ना, और फिर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, and fat and vitamins. Like you can put it in center. अभी बेटर है थोड़ा. और ये सब हम इसमें डाल देते हैं. चिपका दे फिर. हाँ, हम्म, मैं चिपकाऊंगी. कैसे चिपकाना पता है? हमको पहले ग्लू लगाना है और फिर उनके ऊपर डालना है और फिर उनको सूखने देना है. सब पता है आपको. चलो डालो. अब तो सूखने देना है. ऐसे साथ में प्रोजेक्ट करने से न सिर्फ बच्चे अपने सब्जेक्ट के बारे में सीखते हैं बल्कि किसी टॉपिक के बारे में सोचना सीखते हैं, कुछ आइडियाज ढूंढना, न्यू आइडियाज क्रिएट करना, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना,
अपनी किसी भी काम के लिए उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है इसके बारे में सोचना, अपनी चीज़ों को संभाल कर रखना, आपस में कोऑर्डिनेट करना, एक अच्छा टीम वर्क सीखते हैं। और इस प्रोजेक्ट को हम दोनों मिलकर बना रहे थे, बट पूरे प्रोजेक्ट बनाने के प्रोसेस में इट वाज सो सेटिस्फाइंग कि मेरी बेटी को मुझे बार बार कहना नहीं पड़ रहा है कि यू ऑल्सो पार्टिसिपेट, इट इज़ योर प्रोजेक्ट, बिकॉज पूरे प्रोजेक्ट में वो इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। एंड शी वॉज एक्चुअली द वन हु वॉज एक्साइटेड कि ये प्रोजेक्ट अल्टीमेटली कैसा बनकर आएगा, अच्छा बनेगा, बुरा बनेगा, कैसे मार्क्स आएंगे, दैट इज़ समथिंग जो हमारे माइंड में नहीं था। बट हम दोनों को इतना अच्छा लग रहा था प्रोजेक्ट साथ में बनाना, और जो प्रोसेस था, हमने अल्टीमेट प्रोजेक्ट तो एंजॉय किया है, बट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दैट प्रोजेक्ट टुगेदर विद माई किड वॉज वेरी फुलफिलिंग। First thing is we have to paste it here. Second, these are the proteins. तो प्रोटीन क्यों इम्पोर्टेंट है ये हमें लिखना है, एंड देन वी पेस्ट दोज थिंग्स हियर। और ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट्स व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी, और फिर हम इसको यहाँ पेस्ट करेंगे। सेम विद फैट, ठीक है। तो हमें इम्पोर्टेंस पता होगी फूड आइटम्स की, एंड देन वी विल नो हाउ टू यूज इट। अगर किसी चीज़ की हमें इम्पोर्टेंस पता है तो हम उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो एक हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में आएगा, हेल्दी फूड को खाना और इस नॉलेज को गेन करना कि वो हेल्दी फूड खा के हमें क्या फ़ायदा होगा हमारे शरीर को। जस्ट किसी ने कह दिया इसलिए नहीं करना होता, वी शुड ऑल्सो नो द रीजन बिहाइंड इट। शुगर इज, सी एवरीथिंग इफ यू ईट इन लिमिट वुड बी हेल्दी, लेकिन excess of everything is harmful. Doesn't matter if you are eating protein, if you are eating it in excess, it is harmful. Even if you are eating it in deficiency, then also it is harmful. What is deficiency? Deficiency means less than what is required to your body. That is deficiency. Okay? So everything, it applies to everything. Excess of everything is harmful. Deficiency of everything is also harmful. That is why we call what kind of food we should eat? Balanced diet. Have you heard it? So you know why we say that? Because we are supposed to balance our body. I need the scissor. Where is it? Let me get it from Guy got it. We see how many foods we 10 get. centimeter, 10 centimeter, 10 How many are there? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ही हुए ना? So let's do it a little shorter. 5 centimeter. 5 would be too short. 6. Let me check with this. How it goes. This must be 7, I think. 1, 2, 3, 4, 5, 6. It's done. So there are 6. Now I'm gonna press it like this, and then I'm gonna cut it. Good job. High five. I told you this must be 7. Smart. But we need them in cloud shape. So why don't I cut it in cloud shape? Just right here. It would be cloud shape all together. Can I do that? You think it's a good idea? Maybe. Maybe you're trying it. What if we fail? But still, we can draw it and then we'll cut it. So it's not gonna do anything wrong. This cloud. वीकेंड पर बैठ के हमने अपने प्रोजेक्ट का बेस रेडी करा। क्योंकि काफ़ी कुछ चिपकाना था और फेविकॉल का यूज़ बहुत ज़्यादा था, तो पेपर हल्का सा गीला हो गया था, तो उसे अच्छे से ड्राई होने दिया और प्रोजेक्ट सबमिट होने से एक दिन पहले बैठ के हमने उसको फाइनल करा। फूड आइटम्स हम इसमें चिपका चुके थे और गुड हैबिट्स का जो बैनर था वो हमने रेडी कर दिया था। अभी हम हर एक फूड आइटम्स के क्या बेनिफिट होते हैं वो मेंशन कर रहे हैं। 2 बेनिफिट प्रोटीन के, 2 कार्बोहाइड्रेट के और 2 फैट के। विटामिन हम हटा चुके हैं बिकॉज जो डायमेंशंस मेंशन थे प्रोजेक्ट के उसमें विटामिन फिट नहीं हो रहे थे। मैं उर्वी को छोटे छोटे क्लाउड्स बना के इसमें लाइंस करके दे रही हूँ कि कहाँ से कहाँ तक हमें लिखना है, एंड शी इज़ फाइनलाइजिंग इट।
ड्यूरिंग दिस हमने कलर सेलेक्ट करे कि कौन से कलर से क्या लिखेंगे, कितने बड़े क्लाउड्स होने चाहिए, और इस सब में बहुत मज़ा आया। फाइनली जो पेपर थे उसके पीछे हमने एक छोटा सा पतला कार्डबोर्ड चिपकाया ताकि पेपर्स फोल्ड ना हो, और फाइनली हम उसको पेस्ट कर रहे हैं और हमारा प्रोजेक्ट आज बन के रेडी होगा। आई एम सॉरी, नॉट हमारा, मेरी बेटी का प्रोजेक्ट, जिसमें सिर्फ मैंने नहीं उसने भी पार्टिसिपेट किया है। Through the stillness, the clouds drift high. Thoughts like breezes whisper by. Endless waves of a calm blue sky, where dreams take wings and learn to fly. Gentle echoes of time's embrace. Each shadow finds its quiet. ये जो पॉइंट्स हैं इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, फेड हो गए हैं। Because of the glue, mommy. This project is done. How do you like it?